Assalamu alaikum. It's the first class after the orientation class. So let's start. Inshallah, you will enjoy the session and you will definitely get some learning. If you practice and attempt the task on a daily basis, I hope that you will score your desired score. You will be able to get your desired score. But it's just up to you whether you are listening to the lecture properly or attending the classes regularly and attempting the task on the daily basis. These are, you can say, the three steps. The first step is these are the three steps that you should follow. And you are supposed, you will be follow all these steps so that you can get your desired score. The first step is that you will attend you will attend the classes daily, listen to the lecture carefully, and attempt the home tasks on daily basis. Means you will practice the task that I will share with you. And along with those tasks, you will also practice, and these practice include, let me first mention about this practice, what I mean here. By practice, I mean that you will practice on a daily basis. For example, there are the three tasks you will do on the daily basis. The first one is you will listen to an audio or video. आपने कोई लेक्चर सुनना है on YouTube, available on YouTube. You are supposed to select any topic, any area, any genre that inspires you, in which you can take interest. जिसमें आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, that is related to yourself. I'm not talking about that you will listen to an audio or the video that is related to IELTS. No, in the first 2 weeks, you don't need to listen to the IELTS specific content. Just listen the simple general content. And you will share the link with me of that video so that I can also know which type of content you are listening to. Okay? ये डेली बेसिस पे करना है, मुझे दोबारा आपसे कहना ना पड़े. फाइन, आपने डेली करके मुझे बस इन्फॉर्म करना है. दूसरा काम आप क्या करेंगे? I'll assign you the topic on the daily basis and you will write. अभी आप कहेंगे कि अभी तो हमारा स्टार्ट है, हमें लिखना आता ही नहीं है. You are right. लेकिन फिर भी आपने लिखना है. आपको लिखना आता है या नहीं आता, that's another case. राइटिंग पे हम थॉरली बात भी करेंगे, लेकिन आपने डेली राइटिंग करनी है. आई कैन सजेस्ट यू द वन थिंग. आपकी वैसे तो आपको जो मैं टॉपिक दूंगी आप उस पर लिख सकते हैं, कुछ और आप लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना आपने डेली है. एक सजेशन है, आई सजेस्ट यू टू राइट ग्रेटिट्यूड जर्नल. You know what is meant by gratitude journals? No ma'am, elaborate कर दें. Yes, gratitude journals basically means that you will write in your diary before sleeping, and you will write about each and every blessing that you have that day. आप हर एक ब्लेसिंग के बारे में लिखेंगे, हर एक उस एक बात के बारे में जिस पे आप यू कैन फील द ग्रेटिट्यूड. आप खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं, किसी इंसान का शुक्र अदा कर सकते हैं, किसी इवन यूनिवर्स का शुक्र अदा कर सकते हैं. आपने डेली आपने दिन में सोचना है कि कौन कौन सी वो चीजें हैं. अब इसमें भी फिर फर्दर
जितना ब्रेन स्टॉर्मिंग करें आपको उतने आइडियाज आ जाते हैं। आप पहले हर उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, जो आपकी जिंदगी में मौजूद हैं। फिर हर वो चीज जो आपकी जिंदगी में मौजूद नहीं है, उसके ना होने से आपको फायदा हो रहा है, आप उन सब चीजों के बारे में लिखें। फिर आप लिखें उन वेज के बारे में, उन उन चीजों के बारे में जिन पे आज से पहले आपको शुक्र करने का ख्याल नहीं आया, और सबसे पहले इस बात का शुक्र अदा करें कि आपको शुक्र करने की तौफीक मिली। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सेल फोन है और इस चीज को कभी आपने रियलाइज ही नहीं किया कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सेल फोन नहीं है, यू हैव द सेल फोन एंड यू आल्सो हैव द स्किल्स टू यूज द सेल फोन, वरना बहुत सारे लोगों को सेल फोन यूज नहीं करना आता। तो ये एक ब्लेसिंग है, इसको पे शुक्र आपने आज से पहले अदा नहीं किया, तो वो सारे पॉइंट्स अलग से लिखे जिन पे आज से पहले आपने शुक्र अदा नहीं किया और आज आपको रियलाइज हो कि ये भी बात है जिसमें मुझे शुक्र करना चाहिए। तो इस तरह बहुत सारी चीजें जिन पे आप शुक्र कर सकते हैं। फिर हर एक आपके पर्सन, आपके लाइफ में जो जो भी पर्सन है उनको इस बारे में सोचें कि वो किस तरह से आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। खासतौर पे आज के दिन किस किस शख्स से आप मिले, उस शख्स का क्या क्या कंट्रीब्यूट था और किस किस हवाले से आप उसको शुक्रगुजार हो सकते हैं। आप हर एक शख्स के बारे में, हर एक हस्ती के बारे में, हर एक चीज जो आपने यूज की है उसके बारे में सोचें। हर एक चीज को यूज करने के लिए आपके जो बॉडी के पार्ट इन्वॉल्व थे, हर एक उस चीज के बारे में सोचें जो इसके लिए आप शुक्र अदा कर सकते हैं। आपको नेट है, आप बोल सकते हैं, आप सुन सकते हैं, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड बिलियन थिंग्स। आपने उनको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स। अच्छा, मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल्स पे क्यों फोकस कर रही हूँ? साइंटिफिक रिसर्चेस हुई हैं, मे बी यू नो अबाउट द टर्म न्यूरो साइंस। कभी न्यूरो साइंस के बारे में सुना आप में से अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है? यस मैम, हम दोनों ही साइंस के स्टूडेंट हैं। ग्रेट। तो आप लोगों को न्यूरो साइंस का पता होगा, आपको पता होगा जो हमारा ब्रेन है इसका जो स्ट्रक्चर है ये चेंज किया जा सकता है। हर किसी का ब्रेन का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसके सेल्स जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं, और उसकी पूरी साइंस है। अब इतनी ज्यादा डिटेल में साइंस यहाँ मेंशन नहीं करना चाह रही हूँ। और फिर उसके बाद इसकी मेमोरी, हम अपने ब्रेन को स्ट्रक्चर को चेंज करके हम मोर स्किल्ड हो सकते हैं, हम ज्यादा इंटेलेक्चुअल बन सकते हैं, अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यानी कि हमारे हाथ में तो अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर को टोटल चेंज कर दें, और हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है कि अगर हम ग्रेटिट्यूड जर्नल से लिख रहे हैं। आपको पता है दुनिया में इसमें बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं, ये बहुत ट्रेंड, मतलब एक अगर आप देखें ना, साइंस की दुनिया में, मेडिकल की दुनिया में ये एक ट्रेंड है, अभी स्टार्ट हुआ है रिसेंटली, ग्रेटिट्यूड के ऊपर काम करने का। अब नेट पे एक रिसर्च अवेलेबल है और वो बहुत सारे पेपर्स में उसको कोट किया गया है, ये ऑथेंटिक रिसर्च है। एक हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट्स एडमिट हुए जिनको हार्ट प्रॉब्लम था, हार्ट डिजीज थी। अब जाहिर बात है वो मेडिसिन सभी ले रहे थे, एक जैसी मेडिसिन। उनमें से कुछ पेशेंट्स जो डेली बेस पे ग्रेटिट्यूड जर्नल्स लिख रहे थे, उनको कहा गया कि वो 1 मंथ जो है ग्रेटिट्यूड जर्नल्स लिखे, 1 to 6 मंथ का टाइम पीरियड था। तो जिन्होंने रेगुलरली लिखे, आफ्टर द आफ्टर दैट टाइम पीरियड ये रियलाइज किया गया, उनको चेक किया गया कि उनकी बीमारी जो है डिक्रीज होना शुरू हो गई, जबकि वो पेशेंट जो नहीं लिख रहे थे उनका हार्ट का प्रॉब्लम वहीं का वहीं था, दो वो मेडिसिन भी ले रहे थे। तो ग्रेटिट्यूड का हमारे हार्ट पे, आप लिखिएगा, गूगल पे भी सर्च कीजिएगा, रोल ऑफ ग्रेटिट्यूड इन हार्ट प्रॉब्लम या हेल्थ, इस मेंटल हेल्थ। आप चाहे टर्न नेट पे लिख के चेक कीजिएगा, वो पढ़ने से ना बहुत मोटिवेट होंगे कि आपको पता चलेगा चाहिए हमारी मेंटल हेल्थ पे कितना इफेक्ट होता है इसका, हमारी फिजिकल हेल्थ कितनी अच्छी हो जाती है। हालांकि हमें पता ही नहीं है कि ग्रेटिट्यूड एक इस्लामिक बुक में हम पढ़ते आ रहे थे, शुक्रगुजारी, इसका हमारी फिजिकल हेल्थ से क्या ताल्लुक है, इससे हमारा ब्रेन का क्या ताल्लुक है। एक साइंटिस्ट ने तो ये भी कहा है कि हमारे ब्रेन का यानी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो रिलेटेड है टू ग्रेटिट्यूड। अगर आप ब्रेन की स्टडी करें तो उसमें आपको ग्रेटिट्यूड का कंसेप्ट भी मिलेगा। तो ये थोड़ा सा ना नेट पे हल्का फुल्का ब्राउज कीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा इसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस का। तो जब आपने लिखना ही है तो क्यों ना आप ग्रेटिट्यूड पर डेली लिख लें, उससे आपकी राइटिंग तो इम्प्रूव होगी और आपकी लाइफ के बहुत सारे और एस्पेक्ट्स भी में भी आपको फायदा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ओके। यस मैम। तीसरा काम आपने क्या करना है, आपने लाजमी रीडिंग करनी है on the daily basis. Select a book and start reading that book. You can pick up any book that you like, but I suggest you to read the self-help books.
आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें और वो जो ऑथेंटिक हैं जिनसे आपको हेल्प वाकई हेल्प हो गई। फॉर एग्जाम्पल 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, फॉर एग्जाम्पल द पावर ऑफ नाउ। लेकिन पावर ऑफ नाउ की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसलिए आप अभी उसको स्टार्ट ना करें, पहले इजी बुक को शुरू कर दें। दैट इज 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसके अलावा एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, वो बहुत प्यारी छोटी सी बुक है, उसको आप पढ़ें। आप स्टार्ट रीडिंग, आपने डेली जो है वो एटलीस्ट 1 चैप्टर किसी भी बुक का पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और फिर मुझे इन्फॉर्म करना है। इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए, ये जो 3 टास्क मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बस 2 वीक्स तक आप करेंगे, फिर आपको मैं आगे से स्पेसिफिक कंटेंट की तरफ ले जाऊंगी, फिर आपको उस पर काम करना पड़ेगा। सो यू हैव ओनली द 2 वीक्स दैट यू कैन स्पेंड ऑन दिस होम टास्क। आपने जो कुछ भी सुनना है, वीडियो देखिए, कुछ सुना है, लेक्चर सुना है, आपने कोई रीडिंग की है, पिक अप ऑल द वोकेबलरी। आपने सारी वोकेबलरी पिक करनी है, जो भी न्यू वर्ड यूज हुआ है, ये जो आप कोई यूज आपको नया लगा है, उसे ये पिकअप करके एक रजिस्टर पे लिखते रहना है। और फिर यानी कि आपने रीडिंग की, रीडिंग में से सारे वर्ड, सारे एक्सप्रेशन, सारे स्ट्रक्चर जो भी आपको अच्छे लगे, जो फ्रेजेस अच्छी लगी, वो सारे निकाल के लिखती जाए। आपने कोई लेक्चर सुना है, उसमें से जो वर्ड्स आप पिक कर रहे हैं, इंग्लिश में सुनना है लेक्चर, उर्दू में नहीं, वो सारा आपने पिक करके लिखते गए रजिस्टर पे। और फिर रात को सोने से पहले उन सारे वर्ड्स को यूज इन योर ओन सेंटेंसेस एंड एटलीस्ट मेक 3 सेंटेंसेस। क्लियर? गॉट इट मैम। So you promise that you will not disappoint me. इंशाल्लाह। सिर्फ मैम एक इशू है, सिंस मतलब कि अब बहुत से स्टूडेंट्स से, बल्कि हमारे तो सोसाइटी में जो है ना, ये रीडिंग का कल्चर ही ख़त्म हो गया है। जी। तो अब हम जब रीडिंग स्टार्ट करेंगे, और स्पेसिफिकली कोई भी बुक, जैसे 7 हैबिट्स है मेरे पास ऑलरेडी है, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल, सेल्फ हेल्प की कोई भी बुक है, हम्म। तो हमारे लिए स्टार्ट में थोड़ा हार्ड नहीं होगा कि एक पूरे चैप्टर को रीड आउट करना? तो मैं मीन वैसे टू आपको से वन क्या मैं। चैप्टर का है, आप उसको हाफ कर लें जितना आपसे इजीली हो सके। मैंने 1 चैप्टर इस सेंस में कहा था, टाइम उतना कंज्यूम करना है, यानी कि एटलीस्ट स्पेंड 1 आवर यू कैन से। अब 1 आवर में आपके हाफ चैप्टर हो जाए, आपका हाफ से भी हाफ हो जाए, या फुल चैप्टर हो जाए, आपने टाइम स्पेसिफिक स्पेंड करना है कि हाफ एटलीस्ट 1 आवर ऑन रीडिंग, 1 आवर ऑन राइटिंग, 1 आवर ऑन लिसनिंग, एंड देन 1 आवर ऑन मेकिंग completing your tasks like pick up the all vocabulary and using them in your own sentences। कि आपने फिर 1 आवर जो है आपने vocabulary के ऊपर स्पेंड करना है कि उसको अपने वर्ड्स में यूज करना है। ठीक है? राइट। राइट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये काम आप डेली कर लेंगे ना, तो वैसे बहुत बेहतरी आ जाएगी, आपको खुद भी अच्छा फील होगा। आपको मैं आज कुछ बेसिक सी चीजें बताती हूँ that really help you in writing and in speaking as well, and also comprehending any reading passages। कुछ बहुत प्यारे से स्ट्रक्चर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी मेंशन यू कि जैसे कि आपने आम रूटीन में ये कहना होता है कि मैं हंसे बगैर नहीं रह सका। हाउ यू से इन इंग्लिश दैट आप हंसे बगैर नहीं रह सके, आप इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे कहेंगे? यस, कैन यू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश? इट्स हार्ड फॉर मी। ओके। अच्छा, कभी आपने ये कहा है कि मैं चाय पिए बगैर नहीं रह सकता? अगर ये आपने कहना पड़े तो आप कैसे कहेंगे? मैं चाय पिए बगैर नहीं
रह सकता। I can't live without tea. वेरी गुड। मोहम्मद अदनान, डोंट यू पार्टिसिपेट? यस मैम। ओके, कुछ जो भी गलत गलत जहन में है ना बता दिया करें, पार्टिसिपेट किया करें, उससे ना बहुत फायदा होता जी मैम। है। अच्छा, आपने कहा है आई कांट लिव विदाउट टी। डू यू नो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि आप अगर चाय नहीं पियेंगे देन यू विल डाई, आप मर जाएंगे। हालांकि आप ऐसा नहीं कहना चाहते कि आप चाय नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे, आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब वो आपके लिए नेसेसरी है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं उसको अवॉइड नहीं कर सकते, उससे रिस्ट्रेन नहीं कर सकते खुद को, लेकिन आपने आपके लिए चाय पीना जरूरी है। लेकिन इसके बाद आप मर नहीं जाएंगे। अगर किसी ने आपको सम टाइम होता है ऐसा, मैम हमें चाय नहीं मिलती, हम नहीं पीते, मैम हमारा हो जाता है। इसलिए इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर हमने ये कहना है ना हम उस शख्स के बगैर नहीं रह सकते, फिर तो करेक्ट है ये, आई कांट लिव विदाउट हर। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मतलब ये कि वो मेरी जिंदगी है, शी इज माई लाइफ, और वो नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा। हम उसको यही इंप्रेशन देना चाह रहे होते हैं कि हम उसके बगैर मर जाएंगे। बेशक मरते नहीं है, हमें बुखार भी नहीं होता, लेकिन हम इंप्रेशन उस वक्त यही दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये इंप्रेशन नहीं दे रहे होते कि हम इसके बगैर मर जाएंगे। हम ये कहते हैं वो सिचुएशन ऐसी है कि हम रेजिस्ट नहीं कर सके कि हम हंसे ना। उसने बात ही ऐसी सुनाई, जैसे अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैडम उसने बात ऐसी की कि मैं हंसे बगैर रह नहीं सका, सॉरी। बच्चे हंसने के बाद अक्सर ये सेंटेंस बोलते हैं। आपने बेसिकली इसको कैसे ट्रांसलेट करना है? यू विल यूज द वर्ब कैन इन प्रेजेंट। अगर पास्ट की बात है तो कुड के बाद यू विल पुट हेल्प। आपने हेल्प वर्ड लगाना है हमेशा। देन यू विल पुट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing। फाइन, ये दिस इज अ स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में हम कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आई, ठीक है, हम बल्कि लिख देते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, देन आप कैन लिखेंगे। आई कैन नॉट। अब चूंकि ये पास्ट है, मैं नहीं रह सका, मैं हंसे बगैर, सॉरी, मैं हंसे बगैर नहीं रह सका, तो आप लिखेंगे आई कुड। पास्ट हो गया ना, पास्ट की बात कर रहा है। आई कुडंट हेल्प, हंसने की इंग्लिश होती है लाफ, तो लाफ के साथ हम क्या लगा देंगे? ing। आई कुडंट हेल्प लाफिंग। मैं चाय पिए बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प ड्रिंकिंग टी। मैं चाय पिए बगैर नहीं रह सकता। अगर तो आपने वो एक्सप्रेशन देने के वाक्य चाय के बगैर मर जाएंगे, चाय आपके लिए इतनी जरूरी है, तो फिर आप लिख लें कांट लिव विदाउट टी। अच्छा, जैसे कि मैं तुम्हें इस ईद पे तोहफा, या आप यूं करें, मैं उसे सजा दिए बगैर नहीं रह सकता। मुझे उसको सब, या मैं उससे बदला लिए बगैर नहीं रह सकता। एक्सक्यूज मी जी जी, मैम, ज्यादातर हम चाय के लिए टेकिंग टी नहीं इस्तेमाल कर रहे होते। बहुत ज्यादा करेक्ट। ये सिर्फ ब्रिटिश और अमेरिकन का डिफरेंस है। अच्छा अच्छा। आप चाहें तो आप इसको टेकिंग टी भी कह सकते हैं। मैं उससे बदला लिए बगैर नहीं रह सकता। आई, ट्राई करें इसको बनाने की। आई कैन नॉट, फिर हेल्प लगाएंगे, I cannot हेल्प help टेकिंग आई रिवेंज फ्रॉम हिम। मैम, व्हाई व्हाई यू आर यूजिंग द वर्ड हेल्प? ये एक पूरा स्ट्रक्चर है। कैंट हेल्प के साथ, जब कैन या कोड के साथ हम हेल्प लगाते हैं तो उसका मीनिंग होता है ये काम किए बगैर ना रह सकना। ये स्ट्रक्चर है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। और हेल्प के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म द वर्ब आती है और उसके साथ आईएनजी आता है।
यही तो स्ट्रक्चर्स हैं, ये तो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ कि ताकि आप फर्स्ट वीक में सारे स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप नहीं कह सकते हैं, हालांकि आपके पास वोकैबुलरी होती है। जैसे आपके पास हंसना वर्ड है, जैसे हंसना वर्ड है, आपको इसकी वोकैबुलरी आती है, आपको पता है इसकी इंग्लिश लाफ है, स्टिल आप ये सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं कर सकते इनटू इंग्लिश। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू से, आपने क्या कहना है ये तो आपको पता होता है, लेकिन उसे कहना कैसे ये नहीं मालूम होता। उसके लिए वर्ड्स भी होते हैं आपके पास, लेकिन उन वर्ड्स को कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर में ढालना नहीं आता। वही मुझे आपको सिखाना है। समझ रहे हैं आप बात? जी मैम। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, देन वी विल मूव टू अनदर स्ट्रक्चर। यस बद्रे आलम, यस मैम। मेक अ सेंटेंस। वो खुदकुशी किए बगैर नहीं रह सका। वो खुदकुशी किए बगैर नहीं रह सका। He couldn't help without विदाउट नहीं he ऐड, couldn't आप कोई ऐड किया हुआ विदाउट? आप इसमें देखें ना, चेक करेंगे विदाउट नहीं 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 he couldn't help जी जी बताएं। he couldn't help committing suicide. वेरी गुड। He couldn't help couldn't help committing suicide। मैडम, मैम कैन नॉट, कुड नॉट, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पे ये यूज यस, करेंगे? नॉट प्रेजेंट के साथ यूज होता है जब सकता आता है। जब सका आ जाए तो वो पास्ट होता है, तो फिर आपने couldn't यूज करना है या could not यूज करना है। ठीक है, ठीक है। फॉर्मल राइटिंग में आप could not यूज करेंगे, अगर इनफॉर्मल राइटिंग या स्पीकिंग में आप couldn't यूज करेंगे। ओके, मोहम्मद अदनान, आप Yes, बताइए। मैं उसकी दुख भरी कहानी सुन के रोए बगैर ना रह सका। मैं yes, मैं उसकी दुख मैं भरी उसकी कहानी दुख भरी कहानी सुनकर रोए रोए बगैर ना रह सका। I couldn't help I couldn't help weeping to yes I couldn't help listen, thinking weeping to after listen, listening listening to his to sad his story and say, okay? ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, हाउ टू यूज? इज इट इजी और डिफिकल्ट? मैम थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है शुरू शुरू में तो। हाँ ये बेटा, कैसे आपको डिफिकल्ट लग रहा है? इतना तो मुझसे क्वेश्चन पूछना है जहाँ डिफिकल्टी आ रही है, मैं रिजॉल्व करूंगी उसको। मैम जब हम सेंटेंस बना रहे होते हैं ना तो थोड़ी वोकेबलरी में थोड़ा इशू आ रहा। एक मिनट बेटा रुकिएगा, बाहर कोई है, मैं जरा चेक कर लूँ। जी मैम। अच्छा तो क्लास हो रही थी दीदी कर, अब रात को आते हैं हम? नहीं आपका भी कहीं हो फिर आगे यहाँ का सीधे जाते फिर लेट हो गया। अच्छा अच्छा, फिर इधर भी नहीं, फिर सुबह भी मैंने नहीं खाना। सही, कभी जाता हूँ लेकिन फिर बहुत शुक्रिया। आपसे क्या थे, ये आने का टाइम है, मैं का आने का टाइम। मैं सुबह ना मैं ये आपको लिखा देती हूँ, एक सेकंड। तो सुबह नहीं आ रहा, इसलिए मैंने कहा भाई अभी करके दे रहा हूँ। अब मुझे सुबह तो पहले तक नहीं आई।
हाँ जी मैंने ना कोई मसला आया था एक छोटा, तो मैंने आज भी उधर ही था, तो कल भी उधर ही जाऊँ। चलिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं। मेरी क्लास जरा कंटिन्यू है, आप ही कर दीजिए। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स Yes, ma'am. जी मैम, फॉर इंटरप्शन। नो प्रॉब्लम मैम। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे मोहम्मद अदनान कि आपको क्या प्रॉब्लम आता है वोकैबुलरी में। देखें जी मैम, जितने भी सेंटेंस यूज हुए हैं, इसकी कौन से वर्ड है जो आपको पहले से नहीं पता था? पता था ना? मैम थोड़ा सा ना आपका सोचना पड़ रहा होता है कि इसे इसकी जगह कौन वर्ड, जी जी। थोड़ा सोचना पड़ रहा होता है कि अच्छा इधर हम क्या यूज हाँ, यू करेंगे आर वेरी तो। राइट। इसकी वजह ये है, आपके माइंड में वोकैबुलरी है, बट यू नीड टू रिट्राइव ऑल दैट वोकैबुलरी। कहीं ना कहीं आपकी अनकॉन्शियस में पड़ी हुई है, इसको यूज नहीं करते ना, तो फिर वो मुश्किल से रिकॉल करनी पड़ रही होती है। आप फ्रीजर में कोई चीज रख के रखे ना, वो फ्रीज हो जाती है, फिर उसको जब निकालते हैं ना तो मुश्किल से निकलती है, फिर वो मुश्किल से मेल्ट होती है, ऐसे ही होता है ना। लेकिन वो बिल्कुल exist कर रही होती है चीज, इसलिए आपके माइंड में वोकैबुलरी एग्जिस्ट करती है। थोड़ी सी मुश्किल होगी, आप उसे फ्रीजर से बाहर निकालें, टाइम लगेगा आपको, लेकिन फिर वो ऐसे से मेल्ट हो जाएगी, फिर आप उसको यूज कर सकेंगे। लेकिन चूंकि वो काफी टाइम आ जाता है एक्चुअली ना, क्योंकि लैंग्वेज हम्म, हमारे इन्वायरमेंट में तो है नहीं उस तरह से कि हमें डेली बेस पे यूज करनी पड़े। गैप की वजह से वो बिल, फिर हम उसको यूज नहीं करते, फ्रीजर में पड़ी पड़ी वो जम जाती हैं। बिल्कुल। चलिए मजीद हम आगे। 1 मिनट, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। बेटा एक स्टूडेंट को मैं ना एक मैसेज कर दूं, उसने क्लास लेनी थी, उसको आइडिया ही नहीं हुआ। ओके मैम। ओके, एक्चुअली आज फर्स्ट डे है ना, तो स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं हो रहा क्लासेस का, तो कैसे ज्वाइन करना है, थोड़ा सा इसलिए फर्स्ट डे में ना प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। आपको ना मैं कुछ एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करूंगी, ठीक है? उसमें सेंटेंसेस भी दिए होंगे वोकैबुलरी भी दी गई होगी। आपने ना स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए उनको बनाना है, ताकि आपको इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस हो जाए। आप लोग एक साथ यस मैम। जहाँ भी आप टीच कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, वर्क प्लेस आप लोगों की जी सेम। तो देखिए, आप ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यू बोथ आर टुगेदर इन द एट द सेम वर्क प्लेस। आपको चाहिए कि फ्रॉम टुडे, आपको चाहिए onward, you both start speaking in English and start conversating in English with each other. At least the structure you learn. For example, you have learned this structure. आप जानबूझ के यूज करें, आपको जरूरत नहीं भी है ना, यूज इट विदाउट एनी रीजन। यानी कि जो चीज हमें आ जाती है, जैसे बीइंग अ स्टूडेंट, जब मैं छोटी होती थी, अगर मैं कोटेशन याद कर लेती थी ना, कोई चीज, कोई वर्ड्स याद कर लिए, कोई वोकैबुलरी मुझे बहुत अच्छी से आती है,
पेपर में उसकी जरूरत हो या ना हो, क्वेश्चन से रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन मैं किसी ना किसी तरह क्वेश्चन उससे रिलेट करती थी और रिलेट करके उसको लिख कर आ जाती थी। तो ये आपने करना है काम कि आपने कोशिश करनी है कि आपको जो चीज सीख गई है ना उसको पूरा दिन यूज करें बिला वजह, बार बार इस बात का जिक्र करें कि यू कांट हेल्प डूइंग दिस, यू कांट हेल्प डूइंग दैट। जो जो काम के बगैर आप नहीं रह सकते बार बार बताएं। जैसे आप कहें कोई आपको कह रहा है कि प्लीज लेक्चर मिस कर दें, आज आप लेक्चर न लें। जैसे आपको सर बद्र आलम बद्र आलम कहते हैं कि आज आप लेक्चर मिस कर दें, मेरे साथ टाइम स्पेंड करें, तो आप उनको कहिएगा आई कांट हेल्प टेकिंग माई क्लास, मैं अपनी क्लास लिए बगैर नहीं रह सकता, मुझे लेनी है लाजमी। आई कांट हेल्प टेकिंग माई क्लास। आप इस तरह से कहकर उनसे एक्सक्यूज करें, बार बार इस बारे में एक दूसरे से सवाल करें। कैन यू हेल्प, कैन यू नॉट हेल्प वेस्टिंग योर टाइम, क्या आप अपना टाइम वेस्ट किए बगैर नहीं रह सकते हैं। यानी कि ये फर्ज आप टाइम अपना वेस्ट करें। जब भी आप उनको फ्री बैठा हुआ देखें, यानी कि मोहम्मद अदनान को, तो बद्र आलम आप पूछ सकते हैं कैन यू नॉट हेल्प वेस्टिंग योर टाइम, या इकट्ठा भी बोल सकते हैं कांट यू हेल्प वेस्टिंग योर टाइम। इस तरह इसको बिला वजह आपने यूज करना है मैक्सिमम एज मच एज यू कैन। ये आपका सबसे बड़ा टारगेट है कल का, ये टास्क है कि आप इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें इन योर ओन सेंटेंसेस। फिर आपको इतना ज्यादा पक्का हो जाएगा कि जहां भी जरूरत पड़ेगी इसको यूज करने का, वो फौरन से याद आ जाएगा अच्छा मुझे ये यूज करना है। वोकैबुलरी भी तो इसलिए भूले हैं ना कि उसको आप यूज नहीं फिर करते। तो जी जी फिर तो मैम अनकॉन्शियसली जुबान मुंह में से निकलेगा, जब इनपुट में इतना आ जाएगा फिर ऐसे तो ये खुद ही एटर होगा। वेरी गुड। वैसे बद्र आलम सर आपकी ना अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आई अप्रिशिएट यू। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वोकैबुलरी हमने मैट्रिक तक इतनी पढ़ ली थी कि हमें उसके बाद वोकैबुलरी की एटलीस्ट जरूरत नहीं थी। अगर हमें वही वोकैबुलरी को बार बार हम रिवाइज करते हैं, बार बार उसको यूज करते हैं, उसको अपनी पार्ट ऑफ बीइंग बना लेते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, वो हमें भूल गई, जाया हो गया, अब सारा पड़ा हुआ तो टाइम ही वेस्ट हुआ है ना। जैसे हमारी फी हमने पे की और डिग्री आ गई, शुक्र है, अदरवाइज तो वो टाइम सारा वेस्ट हुआ जो कुछ भी हमने पढ़ा था। हम सारा सीख रहे होते हैं जब हम वर्क प्लेस पे जाते हैं, जब हम टीच कर रहे होते हैं या प्रैक्टिकली कोई फील्ड वर्क कर रहे होते हैं, वहां जाकर असल में हम सीखते हैं, वहां जाके हम चीजें याद होती हैं। बीइंग अ स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएशन हमें कुछ याद तो जी नहीं, जी मैम, कंटिन्यू करें। ऐसा होता है ना। जी बिल्कुल मैम, टीचिंग से बंदा सीख। मेन रीजन ये है रिवीजन। वर्क प्लेस में हमें बार बार रिवाइज करना पड़ रहा होता है, एक ही लेक्चर हम बार बार डिलीवर कर रहे होते हैं, एक ही काम हम प्रैक्टिकल लाइफ में बार बार कर रहे होते हैं। मैं आपको इस पे आज फर्स्ट डे इसलिए फोकस करवा रही हूँ कि आपको अच्छी तरीके से बात समझ जाए कि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने रिवाइज करना है, बार बार यूज करना है हर डे। फिर नेक्स्ट लेक्चर लर्न करेंगे तो दोनों को यूज करना है, लास्ट डे वाला और नेक्स्ट डे वाला मिलाकर उसको प्रैक्टिस करें, ऐसे प्रैक्टिस करते रहें। 1 मिनट के बाद लेक्चर एंड हो जाएगा, 10 मिनट्स की ब्रेक होगी, उसमें मैं ये रिकॉर्डिंग को कन्वर्ट करूंगी और आपसे शेयर करूंगी। मीनवाइल आप स्ट्रक्चर को पे देखें, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। नेक्स्ट सेशन 10 मिनट्स के बाद रीस्टार्ट होगा, आप फौरन से ज्वाइन कीजिएगा, हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू। ओके मैम। ओके मैम। मैम वो ये प्रैक्टिस के लिए जो सेंटेंसेस या वो जो हैंडआउट्स हैं वो भी फिर काइंडली शेयर कर दीजिएगा याद से। श्योर, आई सेंड यू। बाकी मैं कोशिश करूंगी 10 मिनट्स में आपसे शेयर कर दूं ताकि आप अभी बैठ के वो काम